नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीदर ने पत्रकार रवि भूसांडे पर किए गए हमले की निंदा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येडियुरप्पा के नेतृत्व में 18 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ होने वाली जनाक्रोश यात्रा में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील। लिंगायत वोकलिंगा जाति जनगणना रिपोर्ट के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे शमनूर। भाजपा ने कर्नाटका में भ्रष्टाचार और बढ़ती लागत को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के क्या है मायने, सरकार के लिए ये है पाबंदी। भाजपा ने रॉबर्ट वाड्रा को बताया भूमाफिया, कहा इन्होंने कसम खाई है कि किसानों को लूटेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बीदर जिला अध्यक्ष डीके गणपति के नेतृत्व में आज शहर के पत्रिका भवन में अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 15 अप्रैल मंगलवार की रात को वन अधिकारियों द्वारा पत्रकार रवि भूसांडे पर किए गए हमले पर विस्तार से चर्चा की गई। सभा को पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष बाबू अली और कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके गणपति ने संबोधित किया। इस अवसर पर अप्पाराव साउदी, शिव कुमार स्वामी, रविन्द्र स्वामी, सिद्धಯ್ಯ स्वामी, शशि शंबेली, आनंद देवप्पा, समीर खान और अन्य रिपोर्टर्स और संपादक आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಮೊನ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಾದ ರವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರಣಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ 24 ತಾಸು ನಾವು ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾವೆಂದೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು ರವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಸುಳೆ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಇದು ಖಂಡನಾರ್ಹದ। ಇದು ರವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೂಡಲೇ ದಸ್ತಗೀರ್ ಸೇರಿ 4 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ। ಅವ್ರು 4 ಜನರನ್ನು ಅಮಾನತ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ। ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಅಲಿ ಅಣ್ಣವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಗೂ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದ। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಘಟನೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಅಪ್ಪರ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ, ಯಾರೇ ಎಂತ ಸಸಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಪಾಲದಾಗ ಹೊಡೆದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ। ಆ ಉದ್ದಾಟತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ। ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಆಗಿರೋಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಾಕ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು। ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು। ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಾನು SC ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದಲಿತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೂ ಸಹ ಅವ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬೇವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ। ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು
ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಾವು ಮಿತ್ರರು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ವಜಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಕ್ಕೋರಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल के नेतृत्व में पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव व बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद भगवंत हुआ तथा भाजपा जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने कांग्रेस सरकार की मूल्य वृद्धि, तुष्टीकरण, मुसलमानों के तुष्टीकरण तथा दलितों के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग की निंदा करते हुए लोगों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येडियुरप्पा के नेतृत्व में 18 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ होने वाली जन आक्रोश यात्रा में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य मारुति राव, पूर्व विधान परिषद सभापति रघुनाथ राव मलकापुरे, पूर्व बुढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली, ईश्वर सिंह ठाकुर व अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BY ವಿಜೇಂದ್ರಜಿ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಜಿ ಅವರು, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೀದರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಅಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಅನ್ವಯ ನಾಳೆ रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। अखिल भारत वीरशैव लिंगायत महासभा के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक डॉक्टर शमनूर शिवशंकरप्पा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या वह वीरशैव लिंगायत और वोकलिंगा समुदायों को चुनौती देकर सरकार चला सकती है। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सरकार इन समुदायों को लेकर राज्य पर शासन कर सकती है। वे कह रहे हैं कि वे एक रिपोर्ट जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हमारे अनुसार राज्य में वीरशैव लिंगायत पहले स्थान पर है और वोकलिंगा दूसरे स्थान पर है। लागू होने की स्थिति में लिंगायत और वोकलिंगा एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वीरशैव लिंगायत महासभा ने पहले ही एक बैठक कर ली है। शिवशंकरप्पा ने दावा किया कि सरकार को इस रिपोर्ट पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा, जो 10 साल पहले किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है और अवैज्ञानिक तथा गलत है। बेलगावी में जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण के दौरान भाजपा के राज्य प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जोरदार मौखिक हमला किया और सत्ता में आने के महज 20 महीने के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार, खराब शासन और नीतिगत विफलताओं का आरोप लगाया। विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया पर आरोप लगाया कि वे लोगों को ऐसे वादों से गुमराह कर रहे हैं जो अब बोझ बन गए हैं। उन्होंने राज्य में बढ़ती महंगाई की आलोचना की और दावा किया कि कांग्रेस शासन में कर्नाटक सबसे महंगा राज्य बन गया है। नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने जनता के विश्वास का दुरुपयोग किया और एक ऐतिहासिक समाचार पत्र दिया तथा न्यूनतम निवेश से भारी मुनाफा कमा गया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यह राहुल गांधी का विकास मॉडल है, जिसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक कल्याण केंद्र ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और विदेश में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि, मुस्लिम महिलाओं की शादी के लिए वित्तीय सहायता और समुदाय के 4% अनुबंध आरक्षण का हवाला दिया। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदुओं में कोई गरीब लोग नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटका भूमि विकास निगम केबीडीसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दूसरी गिरफ्तारी की घोषणा की। ईडी बेंगलुरु जोन ने 12 अप्रैल को केबीडीसी की पूर्व प्रबंध निदेशक आर लीलावती को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत गिरफ्तार किया। उन्हें विशेष अदालत पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने केबीडीसी के पूर्व महाप्रबंधक बीके नागराजप्पा को गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में ईडी की हिरासत में है। ईडी ने 4 अप्रैल को पीएमएलए की धारा 17 के तहत बेंगलुरु के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें विवी टावर स्थित केबीडीसी का कार्यालय और लीलावती सहित आरोपी संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार की कार्रवाइयों पर कुछ बेहद जरूरी पाबंदियां लगा दी हैं। इस आदेश के तहत सरकार अब नए कानून के कुछ हिस्सों को लागू करने में असमर्थ होगी। कोर्ट ने सरकार को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 5 मई 2025 को निर्धारित की है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन कानून के तहत निम्नलिखित कार्यों पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वंशानुगत भ्रष्ट परिवार बताया और दरअसल ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के गुरुग्राम की जमीन मामले में जांच की जा रही है। इसी मामले पर गौरव भाटिया ने उन पर निशाना साधा और मीडिया को संबोधित करते हुए भाटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे एक लैंड माफिया हैं जो कि किसानों की जमीन को हड़पने में शामिल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड घोटाले में जुड़े होने का आरोप लगाया और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े होने और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले जुड़े होने का आरोप लगाया। भाटिया ने इस दौरान सवाल उठाते हुए
कहा कि क्या इस परिवार ने कसम खा ली है कि वे जहां भी जाएंगे भारत और किसानों की जमीन को लूटेंगे। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछे। गौरव भाटिया ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अपनी और कांग्रेस की नजर में रॉबर्ट वाड्रा एक जन नेता है, लेकिन जनता की नजर में वह एक भूमाफिया और एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं और हकीकत भी यही है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा आज लगातार तीसरे दिन ईडी के सामने पेश हुए हैं। वाड्रा ने इस कार्यवाही को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सरकार पर विपक्षी आवाजों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जारी भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है। उन्होंने एक बयान में जारी करते हुए कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की ये कोशिशें महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की हैं, जो पूरी तरह से गलत है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि एक राज्य भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं हैं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है उसे सरकारी मामलों तक सीमित रखे, शिक्षा में न लाए। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन FCRA उल्लंघन का मामला दर्ज किया और उसी के संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता के आवास पर तलाशी ली जा रही है। छापेमारी के बाद आप ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गुजरात में अपने नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी ने इसे राजनीतिक से प्रेरित कदम बताया। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया। सीबीआई ने अब इस मामले में गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को आप नेता दिनेश गुंडूराव के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इससे पहले ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। आरोप है कि आपने ओवरसीज इंडिया नाम का एक नेटवर्क बनाया था, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वॉलंटियर शामिल थे। इस नेटवर्क के जरिए विदेशी फंड जुटाया गया। ये पैसा आप नेताओं को सीधे भेजा गया, जो कि विदेशी चंदे से जुड़ी कानून FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है। इस केस में आपके नेता दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज का नाम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स के जरिए इन नेताओं को करीब 29,000 अमेरिकी डॉलर भेजे गए थे। बिहार में काबा, इस सवाल का जवाब लोग अपने अपने हिसाब से तलाश सकते हैं, लेकिन बिहार में अगर कुछ है फिलहाल तो वो है रंगदारी। नया मामला राजग विधायक की रंगदारी से जुड़ा हुआ है। राजग के विधायक कोई और नहीं बल्कि रीतलाल यादव है, जिनके घर पर बीते दिनों STF की टीम ने रेड की थी और 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ी थी, ताकि पटना और दानापुर के इलाकों में कोई बवाल न हो जाए। विधायक रीतलाल यादव ने जिस बिल्डर से रंगदारी मांगी थी, उस बिल्डर से जब इंडिया टीवी ने बात की तो पूरी कहानी बता दी। बता दें कि बिल्डर कुमार गौरव और राकेश कुमार ने इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। बता दें कि राकेश गौरव के पार्टनर उन्होंने हमें बताया कि रीतलाल यादव ने खुद बुलाकर 50 लाख रुपए मांगे थे। हालांकि समझौता 30 लाख रुपए पर हुआ और उसे 14 लाख रुपए दिए थे। बिल्डर ने बताया कि विधायक अपनी ही लोगों से कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने का दबाव बनाता था, जिसके बाद 19 लाख का सामान देकर 33 लाख मांगा जाता था। कंस्ट्रक्शन विश्वनाथ सिंह की जमीन हमने ली, उसके बारे में विधायक ने कहा, उसको गोली हम लोगों ने मारी थी, फिर तुमने जमीन कैसे खरीदी? वो जमीन हमारी होगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय।
अमेरिका ने अवैध निर्वासन के कदमों के बीच एक और बड़ा फैसला लेकर दुनिया भर में खलबली मचा दी है। अमेरिका ने अपने यहां विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी है। इससे अमेरिका में पढ़ने वाले और वहां प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले तमाम छात्रों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के गृह मंत्रालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को चेतावनी दी है कि अगर वह अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा धारकों की अवैध और हिंसक गतिविधियों के बारे में 30 अप्रैल तक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो विदेशी छात्रों को दाखिला देने की विश्वविद्यालय की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही अमेरिकी मंत्रालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए गए 27 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुदान को भी रद्द कर दिया है। हार्वर्ड के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की यह ताजा कार्रवाई 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर के संघीय वित्त पोषण पर रोक लगाने के बाद की गई है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने प्रशासन की मांगों की एक सूची को अस्वीकार कर दिया है। प्रशासन ने विश्वविद्यालय की कट्टरपंथी विचारधारा के कारण उसके कर मुक्ति दर्जे को रद्द करने का भी प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस टाइम मैगजीन की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। 17 अप्रैल को जारी की गई इस वार्षिक सूची में राजनीतिक, विज्ञान, कला और सक्रियता के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। मैगजीन की इस एनुअल लिस्ट को लीडर्स, आइकॉन और टाइटन्स जैसी कई कैटेगरी में बांटा गया। लीडर्स की लिस्ट में अन्य प्रमुख हस्तियों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का नाम भी शामिल है। आश्चर्य की बात यह है कि इस साल टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में एक भी भारतीय का नाम शामिल नहीं है। हालांकि लीडर सूची में वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की भारतीय मूल की सीईओ रेशमा केवलरमानी शामिल है। केवलरमानी सार्वजनिक अमेरिकी बायो टेक्नोलॉजी कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीदर ने पत्रकार रवि भूसांडे पर किए गए हमले की निंदा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येडियुरप्पा के नेतृत्व में 18 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ होने वाली जनाक्रोश यात्रा में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील। लिंगायत वोकलिंगा जाति जनगणना रिपोर्ट के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे शमनूर। भाजपा ने कर्नाटका में भ्रष्टाचार और बढ़ती लागत को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के क्या है मायने, सरकार के लिए ये है पाबंदी। भाजपा ने रॉबर्ट वाड्रा को बताया भूमाफिया, कहा इन्होंने कसम खाई है कि किसानों को लूटेंगे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।